Good morning, students. Yesterday we discussed the money market where we ended at commercial bill. There's a case, let's go through it, that is of Sterlite Industries. Sterlite Industries, part of the London listed Vedanta Resources Group, is scheduled to be listed on the New York Stock Exchange through an initial public offering of about $2 million. The proceeds will be used to fund its 1.9 बिलियन. ठीक है. क्या हुआ कि देर इज़ अ स्टरलाइट इंडस्ट्री जो कि लंदन वेदांता रिसोर्स ग्रुप का एक पार्ट है. उसको जब फंड्स की ज़रूरत हुई तो दे इश्यूड अ पब्लिक ऑफरिंग जहाँ पर जिसका पूरा अमाउंट था $2 बिलियन और उनकी जो प्रोसीड्स थी विल बी यूज टू फंड इट्स. उनकी जो फंड की उनको ज़रूरत थी वो था उनका $1.9 बिलियन की ग्रीनफील्ड पावर प्रोजेक्ट इन ओडिशा एंड टू एक्सपैंड इट्स एल्यूमिनियम एंड कॉपर फैसिलिटीज. इनको चाहिए था इतना अमाउंट टू प्रोजेक्ट जो उनका था ओडिशा में उसको एक्सपैंड करने के लिए. So, the IPO is a part of an enabling resolution passed by Sterlite to raise up to 12,500 crores through American depository shares. So, Sterlite ने क्या किया, 12,500 crores जो थे वो अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स में वहाँ पर इशू कराए and consequently the company has increased its authorized capital from rupees 150 crore to rupees 185 crore by creating an additional 17.5 crore equity shares of rupees 2 each. जैसे हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर जो इनके अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स थे वहाँ पर इन्होंने अपने शेयर्स को इशू किया एट द रेट ऑफ ₹2 ईच और वहाँ से इन्होंने 17.5 करोड़ एडिशनल फंड्स क्रिएट किए. The shares of Sterlite, which will be among the first metal firms from India to be listed on NYCE, that is your New York Stock Exchange, outpaced Sensex and rose by 1.4% to close at rupees 545.2 on BSE, that is your Bombay Stock Exchange, on the day of the announcement. इसका ये असर हुआ कि सेंसेक्स में 1.4% पे ये क्लोज हुआ जब इसका रेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 545.2 पर क्लोज हुआ, जिसकी वैल्यू जो इशू हुआ था ₹2 पर और क्लोज हुआ 545.2 पर शेयर पे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैपिटल मार्केट. What is capital market? The term capital market refers to facilities and institutional arrangements through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. Capital market वो है जहाँ पे debt and equity for long term are raised and invested. It consists of a series of channels through which savings of the community are made available for industrial and commercial enterprises and for public in general. ये एक वो मार्केट है जहाँ पर चैनलाइज किया जाता है सेविंग्स को कमर्शियल जो एंटरप्राइजेज हैं जिनको फंड्स की ज़रूरत है वहाँ तक वो सेविंग्स को पहुँचाने की. It directs these savings into the most productive use leading to growth and development of the economy. जो सेविंग्स हैं जनरल पब्लिक के पास वो कैसे द बेस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में यूज़ हो सकती हैं और इकोनॉमी को डेवलप कर सकती हैं. The capital market consists of development banks, commercial bank and stock exchange. Very important point. The capital market consists of
development banks, commercial banks, and stock exchanges. An ideal capital market is one where finance is available at reasonable cost. अगर हम एक आइडियल कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ ये वो जगह है जहाँ पे फाइनेंस जो है easily अवेलेबल हो जाए at a reasonable cost. The process of economic development is facilitated by the existence of a well-functioning capital market. In fact, development of the financial system is seen as a necessary condition for economic growth. एक इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमें चाहिए तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर कैपिटल मार्केट जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा हो. It is essential that the financial institutions are sufficiently developed and that market operations are free, fair, competitive, and transparent. The capital market should also be efficient in respect of the information that it delivers, minimize transaction cost, and allocate capital most productivity. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कैपिटल मार्केट है वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और जब फंड की ज़रूरत हो वहाँ पर वो एलोकेट करवा पाए और बेस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में सेविंग को यूज़ कर पाए. द कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ फर्स्ट योर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. जो हमारा मनी मार्केट था वो 1 ईयर उसके पहले की मैच्योरिटी थी, शॉर्ट टर्म था. जो कैपिटल मार्केट है इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म. लेकिन और भी बहुत से डिफरेंसेस हैं. लेट्स गो थ्रू इट. द फर्स्ट इज पार्टिसिपेंट्स. द पार्टिसिपेंट्स इन द कैपिटल मार्केट आर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम मेंबर ऑफ द पब्लिक. Participation in the money market is by large and undertaken by institutional participants such as RBI, bank, financial institutions and finance companies. Individual investors, although permitted to transact in the secondary money market, do not normally do so. अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो वेलकम्ड. बट इन मनी मार्केट जो कंट्रोल है दैट इज़ participation is basically done by the RBI and financial institutions well established. Next is instruments. The main instrument traded in the capital market are equity shares, debentures, bonds, preference shares. The main instrument traded in the money market is trade bill, commercial paper, certificate of deposits. ठीक है, जो promissory note sort of है वो सब प्रैक्टिस होते हैं मनी मार्केट में. और जो हमारे इक्विटी हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये सब इशू होते हैं और फैसिलिटेट करते हैं इन द कैपिटल मार्केट. व्हेन इट कम टू इन्वेस्टमेंट आउटले, investment in the capital market, that is securities, does not necessarily require a huge financial outlay. The value of units of security is generally low, that is rupees 10, rupees 100, and so is in the case of minimum trading lot of shares which is kept small. ठीक है, जब हम कैपिटल मार्केट में शेयर्स को इशू करते हैं तो उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती. They are issued at a very low rate. This helps an individual with small savings to subscribe to these securities. In the money market, transactions entail huge sums of money in the instruments are quite expensive. In comparison to capital market, money market is quite expensive. वहीं कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो स्मॉल सेविंग्स जिनके पास है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज इनके जो शेयर्स एंड इक्विटी जो इश्यूज होते हैं दे हैव अ लो रेट एज कंपेयर टू द मनी मार्केट. Duration. The capital market deals in medium and long-term securities such as equity shares and debentures. Money market instruments have a maximum tenure of 1 year and may even be issued for a single day. अब जो कैपिटल मार्केट है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ देता है और मनी मार्केट जो है वो एक दिन का भी हो सकता है और मैक्सिमम अगर होता है तो इट इज़ ऑफ 1 ईयर. उससे ज़्यादा हम इसे नहीं इशू कर सकते. Next we move on to the point that is our liquidity. Capital market securities are considered liquid investment because they are marketable or on the stock exchange. कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ इशूड हैं
दे आर हाईली लिक्विड, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में इनके ट्रांजैक्शंस को मेंशन किया जाता है. However, a share may not be actively traded, that is, it may not easily find a buyer. हो सकता है कि easily जो है वो shares बिके नहीं, लेकिन easily उनको लिक्विड फॉर्म में अगर चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं. वहीं जब मनी मार्केट का केस आता है, so money market instruments on the other hand enjoy a higher degree of liquidity as there is formal arrangement for this. मनी मार्केट जो है वो हाईली लिक्विड है क्योंकि उनके लिए पहले से अरेंजमेंट है. द डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. जो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया गया है जस्ट टू हेल्प आउट इन द मनी मार्केट प्रोसीजर्स. सेफ्टी की अगर बात करें, so capital market instruments are riskier both with respect to return and principal repayment. कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ एक तो सिक्योरिटी का बहुत इशू है और दूसरी बात रीपेमेंट का. इशूइंग कंपनीज में फेल टू परफॉर्म एज पर प्रोजेक्शंस एंड प्रमोटर्स में डिफ्रॉड इन्वेस्टर्स. क्या हो सकता है कि जो प्लान किया उस हिसाब से शेयर्स ने मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए और यहाँ पर इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड भी हो सकता है. बट द मनी मार्केट इज जनरली मच सेफर विद अ मिनिमम रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. दिस इज ड्यू टू द शॉर्टर ड्यूरेशन. ये क्यों इन मनी मार्केट में इतना रिस्क नहीं है? क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है. शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते, ज़्यादा अगर प्रॉफिट नहीं होता तो रिस्क का रेट भी बहुत कम होता है. वहीं कैपिटल मार्केट क्या होता है, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म होता है. अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई तो जितने भी प्रोजेक्शंस, जितने भी एस्टिमेट किए थे वो पूरे फ्लक्चुएट कर सकते हैं और अच्छा खासा लॉस हो सकता है. Next is our expected return. The investment in capital markets generally yield a higher return for investors than the money market. अब जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मनी मार्केट. द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग इज हायर इफ द सिक्योरिटीज आर हेल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. First, there is the scope of earning capital gains in equity share. Second, in the long run, the prosperity of a company is shared by shareholders by way of high dividends. जब लॉन्ग टर्म इतने ज़्यादा फिनेंस होते हैं तो एक तो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा. उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप कहीं के शेयर्स परचेज करते हैं तो आपकी जो डिविडेंड रेट है, जो आपका डिविडेंड रेट है फॉर शेयर्स, वो भी आपका इंक्रीज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ यू होल्डिंग द शेयर इन दैट कंपनी. So this brings to end of the distinction between capital and money market. Tomorrow we will start with the description of the primary market and the methods of flotation. Okay.